Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I very welcome you to all to this our MCGM VTC online video session. And in this session students we are going to learn about mathematics subject and standard 6 about equations and the rules of equation, and after that we'll do the exercise practice set 27. So here we will start here from these examples. So we are just going to learn how to solve the equations. So an equation, यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों कि मसावातों को किस तरह से हल किया जाता है और कौन सा तरीका अपनाया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस एग्जाम्पल की मदद से इसे यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, here you will observe that this is your school, this one is shop, and here is your house. So the distance from your house to this shop is 190 meter, and the distance between your house and school is 300 meter. So the distance between the shop and school, we are supposed to find out it. Okay, so here we are supposed to use a letter here for this one, and the above picture, what is this distance between the shop and the school. यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ पर 190 मीटर का दिया हुआ है ना, लेकिन ये डिस्टेंस यहाँ पे नहीं दिया है। जबकि आप देखेंगे ये टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, कहाँ से, स्कूल से घर का टोटल डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 300 मीटर, but the distance from shop to school is not given. We are supposed to find out this distance. So how will find out this one? So we are supposed to use the letter for a number here. ठीक है, हमें यहाँ पर नंबर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर किसी अदद के हर्फ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर इसका डिस्टेंस जो है तो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो here is a shop. Here is the distance from shop to house is 190 meter, and we are supposed to assume x to this distance, the distance from school to shop. Okay, to find out the distance between the shop and school, we suppose x. Okay, x meter to it. Okay, so to find out the distance between the shop and the school, we suppose it x. Okay, the sum of x and 190 meter should be 300. Okay, like this, x plus 90 is equal to 300. So x we assumed here, x, that distance from shop to school, and the total distance, the distance from the school and shop is 190 meters. So just we are supposed to write it like x plus 190 is equal to 300. Okay, so here x is called a variable. ठीक है, यहाँ पर दुकान और स्कूल के दरमियान का फासला मालूम करने के लिए हमें इसे x मीटर फर्ज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि x और 190 की अगर जमा होना चाहिए यहाँ पर, यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया, x जमा 190 बराबर 300 है। यहाँ जो x है वो क्या है, यहाँ x को जो है तो मुतगय्यर कहते हैं। ओके, हियर x इज कॉल्ड अ वेरिएबल। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि
अगर x बराबर 110 रखें तब आप देखेंगे यहाँ पर कि 110 जमा 190 बराबर 300 होते हैं, इसलिए x की कीमत जो है तो 110 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, the value you see here, the sum of x and 190 should be 300. Okay, so x plus 190 is equal to 300. Here x is called a variable. If we substitute x is equal to 110, then 110 plus 190 is equal to 300. So the value of x is 110. Okay, so the value of the variable which helps to balance the equation or satisfy the equation is called the solution of the equation. यहाँ पर हमें ये याद रखना है बच्चों कि मुतग़य्यर की कीमत जो मसावात को मुतवाज़न करने में मदद करती है, इसे मसावात का हल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जैसे देखते हैं कि द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 90 इज इक्वल टू 300 इज 10। यहाँ पर हम देखते हैं कि मसावात x जमा 190 बराबर 300 का हल जो है तो 110 है, इस तरह से। ठीक है, याद रखिए इसे। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है बच्चों, उससे हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, इफ द सेम ऑपरेशन इज कैरिड आउट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन, every time the equation remains balanced when any of the following operations, okay, so are carried out on an equation, the equation remains balanced, adding the same number to the both side first. अगर हम जब याद रखना है हमें यहाँ पर बच्चों कि जब मसावात पर जो है तो यहाँ जो अमल दिए जा रहे हैं आपको वो किया जाता है तो मसावात मुतवाज़न रहती है। जैसे सबसे पहले एडिंग द सेम नंबर टू द बोथ साइड, अगर हमने तरफ़ैन को एक दूसरे से बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है तो एक ही अदद तरफ़ैन में बराबर के दोनों जानिब जो है तो जमा करना है। एडिंग द सेम नंबर टू द बोथ साइड, एक्सचेंजिंग द टू साइड्स। ठीक है, तरफ़ैन को एक दूसरे से बदलना है। ठीक है, इसके बाद में सब्सट्रैक्टिंग द सेम नंबर फ्रॉम द बोथ साइड, यहाँ पर एक ही अदद को तरफ़ैन में से जो है तो तफरीक करना है। या फिर जो है तो हम देख सकते हैं कि ये जो है तो तरफ़ैन को एक ही अदद से ज़ब्त करना है। मल्टीप्लाइंग द बोथ साइड्स बाय द सेम नंबर, देन डिवाइडिंग द बोथ साइड बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर, इन तरफ़ैन को किसी गैर सिफर अदद से तकसीम करना। ठीक है, तो ये बातें हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों। ये जो 5 यहाँ पर उसूल है, जो तरीके हैं, वो अगर हमने याद कर लिए, ज़हन नशीन किए हैं, तो हम बहुत सारे सवालात इस तरह के हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के बाद में भी जो हम प्रैक्टिस सेट 27 यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो तब भी आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो पॉइंट नंबर 1 है एडिशन का, फिर एक्सचेंजिंग द टू साइड्स है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आप जो देख रहे हैं पॉइंट नंबर 3 जो है तो ये है ना। इसी तरह से पॉइंट नंबर 4 है जो मल्टीप्लिकेशन है, और जो 5 नंबर का पॉइंट है डिवीज़न का। तो ये अमल बार बार दोहराए जाएंगे सवालात में। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, सॉल्विंग एन इक्वेशन, here is the example, x plus 3 is equal to 7. So while doing this kind of equation or solving an equation like this, we are supposed to see here this number. Okay, यहाँ पर हम जो है तो देखेंगे, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं x जमा 3 है, तो यहाँ पर क्या लेना है हमें, x जमा 3 जैसा है वैसे उसके लिए हमने यहाँ पर इसकी मुखालिफ जो है तो अलामत का इस्तेमाल करना है। तो जमा के मुखालिफ क्या है, नफ़ी है, तो हमने यहाँ पर लिया
3। ओके, और ये 7 जैसा है वैसे लिए, और यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या करना है, -3 ही करना है। ठीक है, तो आपको मालूम है अब यहाँ पर कि ये +3 और ये -3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 7 - 3 अगर करते हैं हम तो यू विल गेट द आंसर 4 हियर। ओके, so x plus 0 is equal to 4. So what we have done here, subtracting 3 from the both side, दोनों तरफ से हमने क्या किया है, 3 को जो है तो तफरीक किया है। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या मिला है, x plus 0 is equal to 4. So x is equal to 4. This will be the answer here. Okay, अब यहाँ पर हम देखते हैं x plus 90 is equal to 300, जो एग्जाम्पल हमने अभी देखा था। ठीक है, so subtracting 190 from the both sides, so you will see here the x plus 190 minus 190 is equal to 300 minus 190. So you will see here the plus 190 and minus 190 will be cancelled. Okay, so you will get the x is equal to 0 is equal to 300 minus 190 will be 110. Okay, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x is equal to 110 हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेगा। ओके, so like this you can do many more questions. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एग्जाम्पल दी हुई है कि नौशाद की 4 साल कबल की उम्र 8 साल थी, तो बताइए इसकी मौजूदा उम्र कितनी है। 4 years ago दिलजीत was 8 years old. How old is he today? ठीक है, 8 साल उसकी उम्र जो है तो 4 साल पहले थी, तो अभी इसकी उम्र कितनी है ये बताना है हमें। ओके, सो what we have to do first, let us suppose his age is a year old, his age is today. Okay, so now let's write the given number information using a. ठीक है, यहाँ पर a हमने ये क्या लिया है, इसे यहाँ पर आपको मालूम है ना, ये एज है तो ये वेरिएबल है ना, मुतगय्यर है a, इसे हमने यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि a माइनस 8 4 साल कबल है ना, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने माइनस किया, a माइनस 4 इज इक्वल टू कितनी है, 8 साल पहले। 8 साल उसकी उम्र थी 4 साल पहले, यानी माइनस a माइनस 4 इज इक्वल टू 8। सो अब यहाँ पर क्या काम आ जाएगा, हमारा मसावत को बैलेंस करने का है ना। सो फ्रॉम एडिंग द 4 वी आर सपोज टू do here the addition of 8 to the 4 to the both sides. So a minus 4 plus 4 is equal to a 8 plus 4. This will be the step here. So you know that this plus minus 4 and plus 4 will be cancelled, and here we'll get 8 plus 4 will be 12. So 8a plus 0 is equal to 12 will be the next step, and you will see the answer will be a is equal to 12. Okay, so यहाँ पर हम देखेंगे कि नौशाद की जो मौजूदा उम्र है वो कितनी है, 12 साल है। ओके, दिलजीत इज 12 years old today. So this kind of example will get to solve the equation. यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और एक देख रहे हैं। यास्मीन के पास कुछ रुपए थे, इसकी माँ ने उसे 7 रुपए दिए, तो इसके पास 10 रुपए हो गए। बताइए पहले इसके पास कितने रुपए थे। Jasmine has some money. Mother gave her 7 rupees. Jasmine now has 10 rupees. How much did she give to start with? So यहाँ पर ये एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। ठीक है,
इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यास्मीन के पास कुछ रुपए थे, इसकी माँ ने 7 रुपए इसे दिए। मीन्स फर्स्ट हमें क्या करना है, कितने पैसे उसको उसके पास थे वो हमें अज्यूम करना है। ओके, सो लेट अस सपोज जास्मीन हैड वाई रुपीज़ उसके पास थे, ऐसा हमने अज्यूम किया यहाँ पर। ठीक है, सो एक्स वाई प्लस 7, और उसकी माँ ने उसको 7 रुपये दिए, तो y प्लस 7 उसके पास कितने हो गए, 10 रुपये हो गए। सो y प्लस 7 इज इक्वल टू 10. So now here is the equation and we are supposed to balance the equation. So here is the addition, and when we are observing the sign of addition we are supposed to do subtraction. Okay, subtracting 7 from the both side. So you will see here that y plus 7 minus 7 is equal to 10 minus 7. So you will see here that y plus 7 minus 7 is equal to 10 minus 7. So this minus 7 and plus 7 will be cancelled, and 10 minus 7 will be 3. Okay, so y is plus 0 is equal to 3. This will be the answer here. Okay, so we can do many more questions like this. So what will be the answer for this one? y is equal to 3, यानी यास्मीन के पास जो है तो यास्मीन के पास में जो है तो पहले 3 रुपए थे, इससे समझ में आता है। इट मीन्स दैट जास्मीन हैड 3 rupees to start with. Okay, this one will be the answer for this. Now we'll move for the another example here. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बॉक्स में कुछ पेड़े हैं, हर एक को 2 पेड़े के हिसाब से बांटे तो वो 20 बच्चों को काफ़ी हो जाते हैं। बताइए बॉक्स में कितने पेड़े हैं। There are some pedas in a box. If some children are given 2 pedas each, the pedas would be enough for 20 children. How many pedas are there in the box? So यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने यहाँ पर फर्स्ट किया कि let the total number of peda will be p here. Okay, so p upon 12. अब यहाँ पर जो है तो जो टोटल बच्चे हैं उनको बांटा गया है ना। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि बांटने का अमल है यहाँ पर, यानी कि तकसीम का अमल है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिया p अपॉन 2 इज इक्वल टू 20. सो p अपॉन 2 इंटू 2. अब यहाँ पर तकसीम है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ज़रब करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 से इसको ज़रब किया है। ओके, so multiplying both sides by 2. So you see here that this 2 and this 2 will be cancelled, p will be remaining here, and 20 into 2 will be 40. So p is equal to 40. So therefore there are 40 pedas in a box there. Okay, तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस बॉक्स में जो है तो 40 पेड़े हैं। इस तरह से हमें यहाँ पर ये बात समझ में आती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट जो है तो ये एग्जांपल देख रहे हैं बच्चों। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बताया गया कि 5 चॉकलेट की कीमत 25 रुपये है। तो बताइए एक चॉकलेट की कीमत कितनी होगी। ठीक है, 5 चॉकलेट्स कॉस्ट 25 रुपीज़। हाउ मच डज 1 कॉस्ट? सो यहाँ पर हमने फर्ज किया कि एक चॉकलेट की कीमत के रुपए है, तो इफ़ 1 चॉकलेट कॉस्ट के रुपीज़। ठीक है, सो 5k इज इक्वल टू 25। यहाँ पर देख रहे हैं 1 चॉकलेट कॉस्ट, हमने यहाँ पर क्या किया है, फर्ज किया है कि एक चॉकलेट की कीमत जो है तो x है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 चॉकलेट की कीमत 25 रुपये बताई हुई है। ठीक है, 5 इंटू k दिस मीन्स। तो यहाँ पर आप देखें कि जब ज़रब का अमल है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, डिवाइडिंग द बोथ साइड बाय 5. सो 5k अपॉन 5 इज इक्वल टू 25 अपॉन 5. ओके, सो दिस 5 and this 5 will be cancelled. 5 ones are 5, 5 5s are 25. Okay, so you see that 1k is equal to 25 here. Okay,
So you see here that k is equal to 5 will be the answer here. Okay, so you see here that therefore one chocolate cost 5 rupees. Okay, यहाँ पर हम देखते हैं इसलिए एक चॉकलेट की कीमत जो है तो 5 रुपए, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो इस तरह से हम जो है तो बहुत सारे सवाल बच्चों इस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है तो रुकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो है तो 27 जो हमारे प्रैक्टिस सेट है उससे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, देयर इज some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।